Good morning, students, and welcome to our YouTube channel Gnan Manjari Modern School. So, in the previous video, we have just completed our chapter number 4, that is our environment. In that, we have seen the different type of the components, that is non-living components, living components, that all the things related to the environment. Now, here we have just reached to the chapter number 5, that is force and work. So, what is force and what is work? So, if force means anything, if I have to just write, I have to write on the board with the marker. So, I need a force. Why? Because to just keep the marker and to write, the force must be applied to the marker to write on the board. In that way, if I just say that work, what is work? So if I just say anything which we have just applied a force to move that object, that is known as the work done. So here you can see it is written, when we are involved in an activity such as cleaning, cooking, reading, gardening, or doing homework, we say we are doing some work. But in science, work means using some kind of force to move an object. तो यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने वर्क की बात किया है. So what is work? What is work? If I just say that work means using some kind of force to move an object Okay, so this is the work. So let us understand first all about the work. So here work मतलब क्या? So work means using some kind of force to move an object. मतलब अभी वर्क की बात करें तो रेगुलरली वी आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थिंग इन आवर डेली रूटीन. सो उसमें अंदर क्या आता है? सबसे पहले आप उठे तो ब्रश करना स्टार्ट करें, तो ब्रश के अंदर क्या होता है? हम लोग पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद ये हाथ को ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो ब्रश दैट विल क्लीन अवर टीथ. तो वी आर डूइंग अ वर्क. इन लोगों ने क्या बोला? वर्क मीन्स यूजिंग सम काइंड ऑफ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट. तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ब्रश विच इज क्लीनिंग द टीथ. ठीक है, चलो उसके बाद बाथ की बात करें. ओके, बाथिंग. तो उसके अंदर क्या होता है? आपने बाल्टी पानी भर दिया, उसके बाद उसके अंदर एक मग से आप अपने को नहलाते हो. ठीक है, सो आपने कभी सोचा कि भाई मैं क्यों ये मग को उठा के अपने ऊपर डाल रहा हूँ? अरे भाई मग थोड़ा अपने आप आएगा कि ले मैं तुझे नहला दूंगा. नो, इट विल नॉट कम विथ इटसेल्फ. वी हैव टू अप्लाई फोर्स. वी हैव टू फर्स्ट keep it, then after fill the water, and then after we have to just pull it down so the water will be on our body. So in that way it is also a work. Then coming towards the school. अभी स्कूल की बात करें तो then we need a bag. बैग के बगैर तो कोई स्कूल आता नहीं. ओके, तो बैग. तो अभी बैग है कि अभी कभी आपने सुना कि बैग है वो आपसे पहले स्कूल पहुंच गया, या आप आपके बैग से पहले स्कूल पहुंच गए? ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि बैग को साथ में ही लाना है. हमको मेंटली पता है अगर स्कूल जाना है तो बैग लेना पड़ेगा. तो बैग थोड़ा अपने आप चल के आएगा. तो हम क्या करेंगे? हम उसको अपने कंधे पे डालेंगे और एक फोर्स, मतलब देयर इज अ फोर्स ऑन आवर बॉडी विद दैट बैग. तो हम लोग उसको लेके इधर आएंगे. देन वी हैव डन द वर्क विथ बैग. ओके, उसके बाद कहीं लोग साइकिल लेके आते हैं.
तो साइकिल तो अभी तो नहीं आई है इलेक्ट्रिक साइकिल, तो उसमें से आपको पैडल नहीं मारना है, वो लीवर दोगे और वो चलेगी, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, मैनुअल साइकिल की बात करें, उसके अंदर हमको पैडल मारना पड़ता है। तो आपने कभी सोचा कि भाई ये साइकिल है अपने आप स्कूल क्यों नहीं पहुंच जाती, उसको तो स्कूल का रास्ता पता होगा, नहीं वो नहीं पहुंचेगी, हमको उसको पैडल मारना पड़ेगा। मतलब क्या, वी हैव टू वर्क ऑन इट, तो ही साइकिल आगे बढ़ेगी, वरना साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं। सो दिस आर सम ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दी वर्क। चलो अगेन, work means using some kind of force to move an object. Okay, now moving forward, that is when an object moves in a particular direction, stops, change its direction, shifts its position, falls, flies or breaks, we say that some force has acted on it. अभी कोई भी चीज, अगर ये बात को आपको मैं समझाऊं तो दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a particular direction, stops, changes direction, shifts its position, falls, flies or breaks, we say that some force has acted on it. Some force has acted on it. Yes, so when an object moves in a particular direction, stops, changes its direction, shifts its position, falls, flies or breaks, we say that some force has acted on it. तो अभी बात करें कि भाई आप कार लेके जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले कार तो स्टेडी है, मतलब एक जगह खड़ी है, हैंड ब्रेक हमने खींची हुई है, तो सबसे पहले अगर आपको चलाना है तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट पुल ऑफ दी हैंड ब्रेक। आपने हैंड ब्रेक नीचे उतार दिया तो गाड़ी कैन मूव इजीली। उसके बाद अभी हम धक्का तो मारेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, उसको गियर बाय गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डालोगे फर्स्ट गियर के अंदर अपनी कार, तो ये मैंने डाली अपनी कार फर्स्ट गियर के अंदर, तो अभी तो वो चलना तो स्टार्ट होगी नहीं। अगर देयर इज अ स्लोप, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे एक स्लोप है कि भाई एक ऐसा स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप, और यहाँ आपकी कार खड़ी है, यहाँ पे मुंह है, तो आप हैंड ब्रेक जैसे खींचोगे तो ये गाड़ी दौड़ने लगेगी नीचे, बट हम स्लोप
की बात नहीं कर रहे हैं। देयर इज स्ट्रेट पाथ, मतलब सीधी जगह पे, यहाँ आगे भी नहीं दौड़ेगी गाड़ी और पीछे भी नहीं दौड़ेगी, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो आपने फर्स्ट गियर में डाली तो वो अपने आप चलने तो नहीं लगेगी, यू हैव टू जस्ट पुल ऑफ slowly the clutch, then it will just move. Then after अगर आप क्या करोगे, लीवर दोगे थोड़ा, means acceleration, so उससे गाड़ी धीमे धीमे स्पीड पकड़ेगी। उसके बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर एंड एट लास्ट फिफ्थ गियर, एंड इन सम कार्स देयर इज सिक्स्थ गियर, ओके। सो देयर शुड बी नो डाउट ओवर इट, ओके। देयर आर डिफरेंट कार्स एंड डिफरेंट गियर्स इन डिफरेंट, ओके। देन आफ्टर उसके बाद आप जा रहे हो स्ट्रेट, तो सबसे पहले गाड़ी स्टेडी थी, मतलब एक जगह खड़ी थी, तो आपने उसको चलाने के लिए एक फोर्स दिया, तो वो फोर्स आया कहां से? इट फोर्स जस्ट कम्स फ्रॉम द इंजन ऑफ द कार, कि भाई कार के इंजन से वो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ओके। देन आफ्टर इट विल स्टार्ट मूविंग, ओके। देन आफ्टर इट वी वांट टू इंक्रीज द स्पीड, हम लोग लीवर ज्यादा देंगे तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह अगर मेरे को सामने एक टर्न आया, ठीक है, तो मैं स्ट्रेट स्टीयरिंग रखूंगा तो वो टर्न बोलेगा कि चल तू भाई स्ट्रेट स्टीयरिंग रख, मैं खुद अपना जो रोड है ना वो सीधा कर दूंगा तो तेरी गाड़ी चली जाएगी। ऐसा होगा? ऐसा थोड़ी होगा, ठुक जाएगी गाड़ी आगे। तो फिर हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसा स्टीयरिंग मोड़ेंगे तो इस साइड का टर्न होगा तो इस साइड का स्टीयरिंग मोड़ेंगे, इस साइड का टर्न होगा तो इस साइड का स्टीयरिंग ऐसे मोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने फोर्स अप्लाई किया कहाँ पे, यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे। तो क्या हुआ, उससे जो आगे के पहिए है वो अगर इस साइड किया तो दोनों पहिए कैसे हुए, ऐसे हुए। अगर इस साइड किया तो दोनों पहिए कैसे हुए, ऐसे हुए। तो क्या होगा, एक हमने फोर्स अप्लाई किया, उससे वी हैव चेंज द डायरेक्शन। सो हियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम कैसे चल रहे थे, सीधे चल रहे थे, बट आगे क्या आया, टर्न। तो स्टॉप्स, चेंजेस डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ करते हैं चेंज डायरेक्शन की बात, कि भाई टर्न आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई वी से दैट सम फोर्स एक्ट ऑन इट। तो हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया कि भाई हमने स्टीयरिंग व्हील को ऐसे मोड़ दिया तो गाड़ी ऐसी चली गई, इस साइड का टर्न होगा तो ऐसे मोड़ दिया तो ऐसी चली गई। मींस हमने चेंज किया डायरेक्शन। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो कि भाई हमको एक फोर्स मांगता है, तो ये फोर्स हमने दिया तो ये ऐसे चली गई। अभी तो पावर स्टीयरिंग्स आ गए हैं, इसलिए यू कैन जस्ट एक उंगली से आप स्टीयरिंग को घुमा सकते हो, बट पहले के टाइम में आपको दोनों हाथ ऐसे मोड़ मोड़ के घुमाना पड़ता है, क्योंकि पहले पावर स्टीयरिंग्स नहीं थे। चलो अभी चलते हैं चेंज इन डायरेक्शन। अभी आप जा रहे हो तेज 80 की स्पीड पे जा रहे हो, अभी आगे आपने देखा बम्प, तो आप बोलोगे ये ब्रेक मारनी पड़ेगी वरना हड़का लगेगा, ठीक है। तो आपको ब्रेक मारनी है, मतलब आपको गाड़ी आपकी स्लो करनी है, तो आप गाड़ी को बोलोगे कि गाड़ी तू थोड़ी स्लो हो जाना, आगे बम्प है, तो वो सुनेगी नहीं सुनेगी। क्या आपको लीवर से पैर हटा के कहाँ पे, ब्रेक पे रख के आपको पुश करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उससे ब्रेक अप्लाई होगी और गाड़ी की स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बम्प है तो वी कैन जस्ट स्लोली जस्ट क्रॉस दी बम्प। बट यहाँ मैं अपनी आम आदमी की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, टेस्ला की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको वो भी मगज में आया होगा, आई नो दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, कि भाई सर टेस्ला तो है वो ऑटो पायलट मोड पे चलती है। भाई यहाँ टेस्ला की बात नहीं हो रही है, इंडिया में बहुत कम टेस्ला है, ठीक है, 2-3 ही है, बट वो ऑटो पायलट में नहीं चलती है अभी इंडिया में, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, तो अभी कोई भी चीज है हमको एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, ठीक है। तो आप उस चीज को बोलोगे कि भाई अभी मैं बात करूं ये मार्कर की, यस, ये मार्कर को मैं बोल रहा हूं कि ये मार्कर तो इस साइड आ जा, तो इस हाथ में नहीं आई, क्यों नहीं आई, ये मेरी मान नहीं रही है मार्कर, देखो तो आएगी क्या, शिफ्ट इट्स पोजीशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप उसे बोलोगे तो वो सुनेगा
नहीं। बट अगर इंसान है, ठीक है, तो उसको बोलोगे तो वो सुनेगा और वो जाएगा भी, और कोई ट्रेंड एनिमल है तो भी जाएगा, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं मार्कर की, तो अगर मैं मार्कर को बोलूँ कि तो भाई इस हाथ से इस हाथ में आ जा, तो ये देखो आ गई, बट ये ग्रीन है, ये रेड, ठीक है। तो क्या होगा कि हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फोर्स? हमको अपना हाथ से मार्कर पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसको यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद इस हाथ में रखना पड़ेगा। तो हमने एक फोर्स से एक प्लेस चेंज की, ठीक है। सो शिफ्ट इट्स पोजीशन। अभी फॉल की बात करें कि भाई कोई भी चीज गिरी तो उसमें भी एक फोर्स है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं डस्टर, तो डस्टर को मैंने पकड़े हुए हैं, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो कहाँ हो, यहीं के यहीं रहेगा कि नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा। आई नो दैट। देखो ये गिरा, गिरा कि नहीं गिरा? तो इसके अंदर फोर्स अप्लाई हुआ। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच पुल्स down all the things on the earth, that is known as the gravitational force. Okay, now flies की बात करें, मतलब उड़ना। तो अभी हवाई जहाज की बात करें और हेलीकॉप्टर की बात करें, स्पेसशिप की बात करें, तो ये सब में आपको ये हेलीकॉप्टर है तो वो कैसे उड़ता है? कैन एनीबडी टेल मी? या अपने आप बोल दो, मुझे सुनाई तो देगा नहीं, वैसे भी आप देख रहे हो वीडियो तो आप बोलोगे वो मुझे सुनाई नहीं देगा। तो हेलीकॉप्टर जो है वो उसका जो ऊपर पंखा आता है वो बहुत फास्ट चलाता है, तो क्या होगा, वो एयर को नीचे धकेलेगा। तो ड्यू टू दैट एयर का वहां प्रेशर होगा और उससे हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है। तो उसको बाद अगर मेरे को सीधा जाना है तो ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऐसे होगा, तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे आगे आगे चलेगा, ठीक है। तो अभी उसको चेंज डायरेक्शन करना पड़ेगा। कभी ये हेलीकॉप्टर सीधा गया, अभी हेलीकॉप्टर बोले मेरे को राइट लेना है तो कैसे लेगा? तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर के पीछे एक पंखा छोटा सा रहता है। हेलीकॉप्टर के पीछू पूछड़ी पे एक पंखा रहता है, वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन है वो उड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले रनवे पे चलता है कितना, 7-8 किलोमीटर, जब तक उसकी एक स्पेसिफिक क्या नहीं आ जाती, स्पीड नहीं आ जाती, तब तक वो रनवे पे दौड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये दौड़ा, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे ऊंचा होगा, उसके बाद ये चला गया। तो आप जब फ्लाइट में बैठो ना, जब टेक ऑफ हो रहा है ना, तो आपको सीट बेल्ट बांधने का बोलता है। क्यों? क्योंकि प्लेन ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग सीट बेल्ट बांधने का बोलते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। और जब टेक ऑफ होता है तो वी हैव टू सिट एट आवर प्लेस, वी डोंट हैव टू जस्ट मूव अराउंड द प्लेन, वरना कोई हादसा हो सकता है। चलो अभी चलते हैं स्पेसशिप में। तो स्पेसशिप तो भाई मुझे भी नहीं पता कैसे चढ़ती है, बट ये पता है नीचे से आग छोड़ती है और सीधी जूं करते ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। मूविंग टुवर्ड्स क्या बाकी है, फ्लाइज, ब्रेक्स। अभी यहाँ कुछ तोड़ तो मैं नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट तो पता है ना, बैट दड़ो, ओके, क्रिकेट खेल रहे हो। तो अभी चलो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, कौन बैटिंग कर रहा है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ। बॉलिंग कौन करेगा, जो करेगा वो हाथ ऊपर कर दो, उसको बॉलिंग दे देंगे। तो जो बॉलिंग कर रहा है उसने यहाँ बॉल आने दिया, मैं बैट पकड़ के खड़ा हुआ और मैंने मारा सीधा सिक्सर। तो ये सिक्सर सीधा जाके लगा एक कांच पे, एक बारी होती है विंडो, उसके कांच पे, और वो कांच टूट गया, और वो कांच टूट गया। तो अभी वो टूटा गया कांच, तो जिसका कांच होगा वो अपने को तो ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका कांच तोड़ा। पर कैसे तोड़ा? हमने उसका कांच कैसे तोड़ा कि भाई हमने एक फोर्स भेजा था। कैसा फोर्स भेजा था कि उसने पहले, जो बॉलर था उसने वहां तेजी से बॉल मेरे को डाला और मैंने बैट से वापस उसको फोर्स दिया, उसको एक डायरेक्शन दिया, ठीक है, उसको एक डायरेक्शन दिया। तो वो फोर्स वापस गया और सीधा कहाँ गया, किसी के विंडो, और विंडो को फोड़ दिया। तो दैट इज द ब्रेक्स।
So here this is all the things about the work. Again I am just reading so you can just understand it easily. So when an object moves in a particular direction, stops, changes direction, shifts its position, falls, flies or breaks, we say that some force has acted on it. Okay, so now moving forward, so just the way around. So now next, that is, in other words, it is a force that makes an object fall, move, fall or turn, or makes it move faster, slower or come to a stop. Objects move when someone pushes or pulls them and makes them move. Cars, bicycles move only when someone drives or rides them. They stop only when brakes are applied. Thus, forces has to be applied to make an object for move or to make an object moving come to the rest. Okay, so here some energy is required to apply force, and by using energy work is done. So here, thus force, work and energy are interconnected. So here the force is given. So what is force? Then here we can say that in the simple words, force is defined as a push or pull. तो फोर्स क्या है, सबसे पहले इधर बात करें. What is force? So here they have said that force is defined as a push or pull. तो आप जब लोग, आपने अभी आपकी बात करूं, आप लोग स्कूल पे आते हैं तो जब रजा पड़ती है, मीन्स जब छुट्टी होती है, तो आप सब लाइन में जाते हैं और कहीं कहीं जो शैतान बच्चे हैं, आई विल नॉट से द नेम, बट आप समझ जाओ, कहीं कहीं शैतान बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे से क्या करते हैं, धक्का मारते हैं. और कहीं कहीं लोग हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं, सर इसने मुझे धक्का मारा. ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं उस धक्के की. किसकी? उस धक्के की. आपको नहीं पता, आपने ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ा हुआ है, यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ, बट आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो. So here I will say force is defined as a push or pull. तो push मतलब क्या? आपने धक्का मारा, तो ये धक्का मारा, तो आप लोग तो इसका यूज करते हो फोर्स का. कब करते हो? तो कहीं कहीं शैतान बच्चे हैं, वो जब छुट्टी होती है तो पीछे से सबको धक्का मारते हैं. सो दे आर यूजिंग अ फोर्स टू पुश द अदर, दिस बॉय और दी गर्ल. ओके, देन आफ्टर पुल की बात करें तो पुल, व्हाट इज पुल? तो अभी आप मुझे सोचो और बताओ कि भाई पुल क्या होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू 10 seconds एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, पुल की बात करें तो आपने कुआं देखा है? कुआं मीन्स जो बोलते हैं कि भाई कुआं बोलते हैं ना, कुओ इन गुजराती, तो उसके अंदर से आप पानी कैसे निकालोगे? कैन एनीबडी टेल मी? सबसे पहले तो वो पुली होती है ना, पुली, तो उसमें से दोड़ा उस साइड डाला, उसमें बाल्टी बांधी, और बाल्टी कहाँ भेजते हो? नीचे. तो बाल्टी को ऊपर लाने के लिए आप क्या करते हो? क्या करते हो? खींचते हो. तो ये खींचना मतलब क्या? पुल.
पुल टूवर्ड्स यू, तो क्या होगा, वो बाल्टी कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो वो बाल्टी आ गई तो आप उसको पकड़े रखोगे और बाल्टी ले लिया, उसके बाद जहाँ पे पानी और बाल्टी में डालना है वो डाल दोगे। ठीक है बच्चों। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, it can make a body move in a particular direction. It can make a moving body move faster, that is change its speed, change its direction or make it stop. When force is applied in the same direction as the movement of a body, a moving body goes faster. When force is applied in the opposite direction, it slows down and stops. A fielder stops a moving cricket ball by applying force in the opposite direction. He stops it from reaching the boundary line by pushing it in the opposite direction. By applying force sideways, we can make a moving body change its direction. When a batsman hits the cricket ball, he does not hit it back to the bowler. He drives the ball to his right or the left. The ball goes in the different direction. तो अभी बात करते हैं कि भाई यहाँ जो मैंने समझाया है ना वो सब आ गया है, क्योंकि हमने क्रिकेट की बात कर ली, उसके अंदर कैसे चेंज करते हैं डायरेक्शन और वो सब। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली आगे चलते हैं, ये क्योंकि मैंने समझा दिया, तो भी कोई डाउट है ना यू कैन आस्क मी, बट आई विल से हमने एक चीज नहीं किया कि हम देखो कोई बॉलर है उसको अगर कैच पकड़ना है या फिर बॉल बाउंड्री में से जाने के लिए रोकना है तो वो लोग क्या करते हैं, दे जस्ट अप्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स। अगर आप तेजी से किसी चीज की तरफ जा रहे हो और आपको ब्रेक लगाना है तो आपकी ब्रेक अप्लाई होती है तो एक ऑपोजिट फोर्स क्रिएट होता है, उससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर धीरे जा रहे हो और आपकी स्पीड बढ़ानी है तो उसी डायरेक्शन में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज force applied on a brittle substance such as glass can be break it. Stretching an elastic too much can snap it. Force can do many other things too. Force can bend, lift, squeeze or crush and change the shape of the thing. तो अभी फोर्स से वो क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले करते हैं ब्रिटल सब्सटेंस, मतलब जो कांच और वो सब है तो उसके अंदर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कांच तो टूट जाएगा, मींस इट इज ब्रिटल। देन आफ्टर स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक टू मच इट स्नैप इट, तो अगर रबर की बात करें आप उसे बहुत खींचो तो वो टूट जाता है, दैट इज द फोर्स व्हिच ब्रेक देम। देन फोर्स कैन बेंड, मतलब कोई भी चीज को फोर्स मोड़ सकता है, अगर कोई भी सरिया है उसको हम ज्यादा फोर्स दे तो वो मोड़ जाएगा उस डायरेक्शन में। देन लिफ्ट, तो अगर कोई भी चीज लिफ्ट करनी है मतलब एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन लिफ्ट देम। देन स्क्वीज और क्रश, तो अगर हमको कोई जूस बनाना है वो सब करना है तो हमको उसको स्क्वीज कर सकते हैं और क्रश कर सकते हैं तो उसमें से उसका जूस निकल जाएगा। उसके बाद चेंज द शेप ऑफ दी थिंग, तो जो थिंग है उसका चेंज भी हम शेप कर सकते हैं। सो दिस थिंग्स कैन बी डन बाय दी फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी जस्ट keep up to here. So in your homework what you just do is homework write the board work two times. Okay, write the board work two times in your book. Okay students, and the board work is nothing, these 3 points 1 2 and 3.
If you know this 3 point, then you can easily understand this chapter. So that is your homework, and we will meet in the next video. Okay, bye students.